Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री पे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसका 4C पार्ट है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh was born in Karachi on 25th December 1876. His father was Jinnah Bhai Punja, known as Punja Jinnah, a famous merchant trader. जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो कराची में पैदा हुए और उनके जो फादर हैं, उनके वालिद हैं, उनका नाम जो है वो जिन्ना भाई पूंजा है, जिनको हम पूंजा जिन्ना के नाम से भी जानते हैं, और वो एक मशहूर ताजिर थे। एजुकेशन। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम सिंध मदरसातुल इस्लाम एंड गोकुल दास प्राइमरी स्कूल। ही गॉट हिज मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल डिग्री फ्रॉम बॉम्बे. Then he went to England and got his degree in law from Lincoln's Inn University, England, and become a barrister, senior lawyer, advocate. अच्छा जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी अर्ली जो कि शुरू की तालीम थी वो कहाँ से हासिल की। दैन जो है वो हाई स्कूल उन्होंने बॉम्बे से किया, फिर वो इंग्लैंड चले गए और वकालत की डिग्री हासिल करके वापस आए। Politics. Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh became an active politician by joining the Indian National Congress in 1906. At first, Jinnah Rahmatullah Alayh was the strongest supporter of Hindu-Muslim unity, but soon he found out that the unity of Hindu and Muslim is almost impossible. So he joined All India Muslim League AIML in 1913. शुरू में जो है उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया, क्योंकि वो भी इस हक में थे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो एक साथ रह सकते हैं। लेकिन बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरा तो उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है, और उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को खैरबाद कहा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन कर ली। ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. He worked for Pakistan day and night. The Muslim of India gave him the title the कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ग्रेट लीडर. उस टाइम के जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने इनको ये खिताब दिया था कायद आज़म का, यानी कि ग्रेट लीडर, एक अजीम लीडर का. Finally, he succeeded with the help of other Muslim leaders along with the Muslim of India, and new country came into being on 14 अगस्त 1947. आखिरकार जो है इन्होंने जो है वो जीत गए वो ये, और उन्होंने जो है वो मुस्लिम ऑफ इंडिया, जो इंडिया के मुसलमान, उन लोगों के लिए एक अलग जो है वो सरजमीन क्रिएट की और उसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा, जो कि 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आई. First Governor General of Pakistan. After Pakistan came into being on 14 August 1947, the Qaid Azam Rahmatullah Alayh became the first Governor General of Pakistan. The Qaid Azam Rahmatullah Alayh was a brave leader and an intelligent administrator. जो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान बनने के बाद, वो भी कायद आज़म थे. Last journey of Qaid Azam death. The Qaid Azam Rahmatullah Alayh was a great leader. He wanted to work more for Pakistan, but the journey of his life ended very soon after Pakistan came into being. On 11 September 1948, the Qaid Azam Rahmatullah Alayh passed away, died. He was 71 years old. He was buried in Karachi. जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो ज़्यादा देर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके. पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही जो है वो उनकी वफ़ात हो गई, और वफ़ात के वक्त जो उनकी उम्र है वो 71 ईयर थी, और वो पाकिस्तान जो कराची है, जो पाकिस्तान का शहर है, वहाँ पर दफन है. सर सैयद अहमद ख़ान. Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi on 17th October 1817 in the Mughal Empire of Akbar II. His real name was Syed Ahmad Taqvi bin Syed Muhammad Muttaqi. His father Syed Muhammad Muttaqi was an advisor to Mughal Emperor Akbar II. Education. He got his early education from his maternal grandfather Khwaja Fariduddin. He received his education for working in the court from his uncle Maulvi Muhammad Khalilullah. Career. Syed Ahmad Khan got his first job in the Mughal court of Agra as an assistant clerk. Then he served in Mainpuri and Fatehpuri Sikri. Later he worked as chief Amin in Delhi and Bijnor, and finally he got his higher position of Sadarul Sadur in Muradabad, Ghazipur and Banaras. Due to his dedication to his work, he became popular among the public. In 1838,
Sayyid Ahmad entered the service of East India Company and became a judge at a small cases court in 1867. The British government gave him the title of Sir for his services. अच्छा जी, इनकी जो है वो शुरू से लेके जो इनका आगाज़ हुआ, वो पैदा हुए दिल्ली के अंदर। फिर जो है उनके वालिद के बारे में जिक्र किया गया जो कि मोहम्मद मुत्तकी थे, जो कि मुग़ल एम्पायर अकबर II के एडवाइज़र भी थे। फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की। सबसे पहले जो है वो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादा जो थे उनके ख्वाजा फरीदुद्दीन, उनसे एजुकेशन हासिल की और उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा कोर्ट की एजुकेशन जो है वो अपने अंकल जो थे उनसे उनकी सरपरस्ती में जो स्टार्ट की। फिर करियर में शुरू में जो है उन्होंने एज असिस्टेंट क्लर्क जो है वो स्टार्ट किया और फिर तरक्की करते करते वो स्मॉल कोर्ट में जो है वो जज की जो जिम्मेदारियां हैं वो सरअंजाम देने लगे। और इनकी तमाम सर्विसेज को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको खिताब दिया सर का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।